اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ العظیم۔ مختصر سی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت اللہ پاک نے تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی، ببدر، بدر کے دن، وانتم اذلہ، حالات تمہارے ایسے تھے، تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم اس وقت کمزور تھے، تم تھوڑے سے تھے، تمہاری تعداد کو انگلیوں کے پوروں پہ گنا جا سکتا تھا، اور تم 313 تھے کل ملا کر کے، اور مقابلے میں دشمن کا جو لشکر تھا وہ لشکر جرار تھا۔ 1000 جنگجو مسلح، ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ جنگجو تھے جو کفار تھے تمہارے مقابلے میں آئے تھے۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے آپس میں مشاورت کی، ان کی ویسے بھی ایک مشاورتی کونسل تھی، دار الندوہ کے نام سے ان کے ایک پارلیمنٹ تھا، ایک سازشی سینٹر تھا، وہاں پہ بیٹھ کر کے وہ اسلام کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے ایک ترتیب طے کی، ایک مشاورت کی کہ ایک کاروبار کا، ایک تجارتی قافلہ ہم بھرپور تجارتی مشن روانہ کرتے ہیں، سفارتکاری بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کریں گے، اور بھرپور ہم اپنی اس تجارت کو فروغ دیتے ہوئے اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے، اور جو منافع ہمیں ملے گا اس میں سے ہم اسلحہ بنائیں گے، گھوڑے خریدیں گے، تیز رفتار جنگجو گھوڑے، اور پھر ہم تیر کمان بنائیں گے، اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو مٹائیں گے، تلواریں بنائیں گے، تیر کمان بنائیں گے، یہ چیزیں ہم تیار کریں گے۔ جب ابو سفیان کو اس لشکر کا سالار بنایا اور بھیجا، وہ چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہوا، اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب، یہ دشمن تیرے خلاف یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ان کے تجارت کے تانے بانے یہ تمہاری سرکوبی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے صحابہ کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کا یہ نام نشان مٹانے کے در پہ ہیں۔ یہ اس منصوبے کو بنا کر کے انہوں نے تجارتی قافلہ روانہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ یمن کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس شاہراہ پہ متعین کر دیا کہ تم راؤنڈ لیتے رہو، یہاں پر تم چوکیداری کرو، وہ آتے جاتے رہے، دیکھتے رہے۔ ادھر سے ان کا تجارتی قافلہ آیا، دور سے صحابہ کرام کو دیکھا تو راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے بحر احمر کے کنارے سے یہ جا کر کے پہنچ گئے مکہ میں، اور مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ بدلتے ہی انہوں نے اپنا ایک قاصد دوڑایا، جو تیز رفتار قاصد تھا۔ اس وقت عالمی قوانین یہ تھے کہ قاصد کو مارنا نہیں، اس کو گرفتار نہیں کرنا، تو مسلمانوں کے قریب سے بھی وہ گزرا ہوگا یا کہیں سے بھی اس کا گھوڑا گزرا، وہ گزر گیا، قاصد کو اس کی خاص علامات ہوتی تھی، کوئی مخصوص قسم کا جھنڈا ہوتا تھا، تو اس انداز سے وہ قاصد سفر کرتے تھے۔ قاصد چلا گیا، وہ تیز رفتار تھا، قافلہ یوں چونکہ سلو آہستہ آہستہ منزل در منزل جاتا تھا، لیکن راستہ انہوں نے بدل دیا، وہ مدینے کے راستے کی طرف سے نہیں گزرے یہ لوگ۔ جب قاصد پہنچا تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ جا کر کے عمر بن الشام سے یعنی ابو جہل سے کہہ دو کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمیں راستے میں دکھائی دیے ہیں، وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ ادھر ایمان والوں کے ہاں یہ بات چل رہی تھی، اللہ نے فرما دیا تھا کہ اے ایمان والو، تمہارا مقابلہ 2 لشکروں میں سے کسی ایک سے ضرور ہوگا، اللہ پاک تمہارا آمنا سامنا کروائے گا۔ تو ایمان والے یہ چاہتے تھے کہ جو کمزور پوزیشن والا لشکر ہے یعنی تجارتی قافلہ وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو مسلح گروہ ہے، جنگجو قافلہ ہے کافروں کا، اس سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو، تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ اگرچہ کافروں کو وہ بات ناگوار گزرے، لیکن اللہ حق کو حق کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ تو بہرحال جب وہ قاصد پہنچا، ادھر سے ابو جہل نکلا، ابو جہل نے اپنا سامان سفر تیار کیا، 1000 لشکر جرار لے کر کے نکلا، اور وہ آتے 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 بدر کے مقام پر پہنچے۔ بدر ایک میدان کا نام ہے، بدر ایک کنویں کا نام ہے، بدر ایک بستی کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور ادھر سے ایمان والے نکلے اور جاتے جاتے وہاں پر جا کر کے پہنچے۔ کیا کرتے ہیں کہ اونچائی کی جگہ پر یہ کافر براجمان ہے،
ये आए और इन्होंने मोर्चे बना लिए और ईमान वाले नशेबी जगह पर, गहराई वाली जगह पर है। अब यहाँ से ऊपर उनको देखना, उनसे लड़ना आसान नहीं है। और फिर रेत है, उस पर फिसलन बना हुआ है, पाँव फिसलते हैं, लोग गिरते हैं, ये सूरत हाल है। अल्लाह ने ईमान वालों पर खुसूसी फजल करम किया, रहमत की बारिश का नुज़ूल कर दिया, बारिश बरसती रही और पानी नीचे स्टोर होता रहा, जमा होता रहा। चुनांचे ईमान वालों ने वहाँ पर पानी के तालाब बना लिए, जानवरों ने पानी पी लिया, खुद इन्होंने अपने बर्तनों को भर लिया, खुद पानी भी पी लिया, थकावट इनकी दूर हो गई। पूरी रात काफरों ने जाग करके गुजारी है और ईमान वालों पर अल्लाह पाक ने हुदूदगी तारी कर दी और नींद तारी हो गई, यहाँ तक कि इनके हाथ से इनके हथियार गिरने लगे। इनकी मुख्तसर सी तादाद थी, 313 थे, 2 घोड़े, 9 ऊँट, 50 ऊँट और 7 ज़ेरे, 6 तलवारें, ये कुल मिला करके ये साजो सामान था। और उधर 1000 मुसल्ला लश्कर, उनके पास घोड़े भी थे, ऊँट भी थे, उनके पास देगे भी थी खाने के लिए, उनके पास नाच गाने बाजे बजाने के सारा साजो सामान था। वो फंक्शन करने, जश्न मनाने आए थे कि ये थोड़े से लोग, इनको मार के हम वहाँ पर जश्न मनाएंगे, ये सोच करके आए थे। उनके पास ज़ेरे भी थी, तलवारें भी थी, नेज़े भी थे, खंजर भी थे और मुसलमान थोड़े से थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में थे और हज़रत अबू बकर आपको बार बार कहते कि या रसूलल्लाह, आप परेशान न हो, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह पाक अपनी मदद का वादा पूरा फरमाएंगे। और इधर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, रब्बुल आलमीन, आज अगर ये 313 मिटा दिए गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। आज अगर ये 313 मिट गए, मुवाहिद ख़त्म हो गए, मुशरिकीन को गलबा हो जाएगा, काफिरीन गलबा पा जाएंगे, फिर ईमान वाले, फिर तकवे वाले, फिर इखलास वाले, फिर ये कहाँ होंगे। यही तो वजह है कि कहने वाले ने कहा कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी आसमानों से फरिश्ते उतर सकते हैं, मदद को आ सकते हैं। रब भी वही है, उसकी किताब भी वही है, उसका रसूल भी वही है, उसका निज़ाम भी वही है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि हम लोग बदल गए हैं, हमने इताअत को छोड़ दिया है, हमने फर्माबरदारी को छोड़ दिया है। आज देखें ना, फ़लस्तीन है दरमियान में, दाएं बाएं इस्लामी ममालिक की कितारें हैं और यहाँ पाकिस्तान है। पूरी दुनिया का मुसलमानों को देख रहा है। आम आवाम नास तड़पते हैं, परेशान होते हैं, मचलते हैं, लेकिन जिनका काम लड़ना है वो लड़ते नहीं, जिनका काम है जंग रोकना वो रोकते नहीं, जिनका काम है सफारतकारी करना वो करते नहीं। और आम आवाम बेचारे बदुआएं भी देते हैं, फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं भी करते हैं, वो अपना माल भी लगाते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर आई हुई वो मुसीबत टलती नहीं। ठीक है कि वो जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन 32,000 जनाजे उठ गए हैं। ये वो हैं जो आदाद व शुमार गिनती में आ चुके हैं, जो हिसाब में आ चुके हैं। कितने ही लापता हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं, जो अभी तक मिले ही नहीं है, किसी मलबे के नीचे हैं, किसी पत्थर के नीचे हैं, किसी इमारत और बिल्डिंग के नीचे हैं, अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ हैं। बहरहाल कि उस वक्त जब आमने सामने सफ़े सीधी की गई तो ये सजदे में हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सजदे में हैं और वो कहते हैं कि या अल्लाह, आज अगर ये लोग मिट गए तो इस्लाम का नक्शा बदल जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। आपने ये वादा किया है कि मैं मदद करूँगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हज़रत अबू बकर बार बार देख रहे हैं कि कहीं जनाब रसूलुल्लाह की रूह न परवास कर गई हो। आपने सजदे से सर उठाया, आपके चेहरे अक़दस पे इत्मीनान था और फिर सुबह का सवेरा हुआ, नमाज फजर हो गई। उसके बाद जब दिन आ गया तो आमने सामने सफ़े बनी। जब सफ़े बनाई गई तो ईमान वालों ने कुफ़ार को शिकस्त दे दी। अल्लाह ने अपने फजल व करम से 500 फरिश्ते दाएं तरफ, 500 बाएं तरफ भेजे। हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ेर कमान आए, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की कमान में आए तो 5000 की तादाद में फरिश्ते ज़मीन पे नाज़िल हुए। उन्होंने ईमान वालों का साथ दिया। बताना ये है कि फरिश्ते क्यों आए, फरिश्ते कब आए। फरिश्ते इसलिए आए कि अल्लाह ने मदद का वादा किया है। अब अल्लाह की मदद अब भी है, क़यामत तक अल्लाह की मदद रहेगी। और फरिश्ते कब आए? फरिश्ते उस वक्त आए कि जब ईमान वाले अपनी कुव्वत को लेकर के मैदान में आ गए, अपनी ताकत को, सरमाए को लेकर के आ गए। पीछे बचाया कुछ भी नहीं, जो कुछ था वो लेकर आए थे। जितने ऊँट थे ले आए, जितनी तलवारें थी वो ले आए, जितनी ज़रें थी वो ले आए, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। जब अपने आप को पेश किया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भी भेजा, फिर अल्लाह पाक ने फतह भी दी और काफिरों को शिकस्त भी दी। बहरहाल बदर के मैदान में ईमान वालों को अल्लाह ने फतह दी। ये यौमुल फुरकान है,
यौम अल्तक़ल जमआन, ये वो दिन है कि जिस दिन दो लश्करों का, दो ग्रोहों का आमना सामना हुआ है। एक तरफ ईमान वाले और दूसरी तरफ कुफ्फार, एक तरफ सच्चाई की पैकर, दूसरी तरफ जुल्मत वाले झूठे और बेईमान दगाबाज, एक तरफ रसूलुल्लाह के साथ सहाबा करम, दूसरी तरफ अबू जहल और अबू सुफियान की सरकर्दगी में उनकी माहियत में आए हुए कुफ्फार और मुशरिकीन थे। वो ये चाहते थे कि इनका नाम मिटा देंगे, इनकी नस्लों को कुचल देंगे, इनका निशान बाकी नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह ने मदद की, कुफ्फार को शिकस्त फाश हुई। 70 काफर मारे गए मैदान में और 70 ही गिरफ्तार हुए। और उस मौका पर यह बात भी हुई कि हक और बातिल के दरमियान फ़र्क हो गया। यह हक और बातिल के दरमियान पहला गज़वा था, पहली जंग थी। उसके बाद अल्लाह पाक ने इस्लाम को फतूहात का न ख़त्म होने वाला सिलसिला अता फरमाया। बहरहाल 17 रमज़ान अल मुबारक को ग़ज़वा बदर हुआ। वो लोग थे जिन्होंने रोज़ा भी रखा, सहरी भी की, अफ्तारी भी की और जंग में मैदान में जा कर के जंग लड़ी भी है और जीती भी है। आज के मुसलमान को चाहिए कि वो ये सोचे कि हम जंग तो हम नहीं लड़ रहे हैं, या कोई आदमी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सोचे। हर एक आदमी पे हज तो फ़र्ज़ नहीं है, हर एक पे ज़कात भी तो लाज़िम नहीं है। जिस पे हज फ़र्ज़ है वो अदा करें, जिस पे ज़कात है वो अदा करें। और जिहाद इस वक्त ज़रूरी है कि हमें जज्बे जिहाद से सरशार होकर के फ़लस्तीन का दिफा, कश्मीर का दिफा और उम्मत मुस्लिमा का दिफा करना चाहिए। बहरहाल जो ज़िम्मेदारान हैं वो अगर इस ज़िम्मेदारी के उन्वान से गाफिल हैं या वो कोताही कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ वो मुजरम हैं, वो खुदा को जवाब देंगे। बहरहाल जज्बे जिहाद ज़रूरी है। हदीस पाक के अंदर आता है कि इज़ा तरक्तुमुल जिहादा फसल्लतुल्लाहु अलैकुम ज़िल्ला, कि अगर तुम न जिहाद करो, न जिहाद का तुम्हारा जज्बा और इरादा हो तो तुम मुनाफिकत पे मरोगे। तो हर एक ईमान वाले की दिल की आवाज़ है कि हम ईमान के लिए, हम हक के लिए, हम दीन इस्लाम की बालादस्ती के लिए, हम इस्लाम के दिफा के लिए लड़ना चाहते हैं, जाने कुर्बान करना चाहते हैं। अब वक्त ऐसा है कि जज्बा जिहाद से सरशार हो करके मैदान अमल में उतर जाएं। बहरहाल जब भी ऐलान हो तो ये अवाम, ये मुसलमान इंशाअल्लाह उस मैदान में उतरेंगे। फ़िलहाल ऐलान नहीं है, जब तक ऐलान नहीं है तो उस वक्त तक एक ईमान वाला खर्च कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का एहतमाम करें। और उस वक्त ग़ज़वा बदर के अंदर, मैदान बदर में छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ और मुआज़ ने अबू जहल जैसे काफर को, जो काफरों का सालार लश्कर था, उसको कत्ल किया था। और 17 रमज़ान अल मुबारक का दिन था। आज हम रोज़ा भी सही से न रखें, सहरी अफ्तारी न करें, नमाज तरावी न पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत न करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। रमज़ान अल मुबारक के इस माह मुक़द्दस में 17 रमज़ान अल मुबारक को हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनकी भी वफ़ात का दिन है। इस हवाले से भी मैं आपसे मुखातब होने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें वो पहले मुसलमान, कहा किसी कहने वाले ने कहा वो मुसलमान कहाँ गए अगले ज़माने वाले, इम्तियाज़ अबयज़ व अस्वद का मिटाने वाले, भेद क्या था जो आपस में न मिलते थे कभी, बन गए मशरक़ व मग़रिब को मिलाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को अक्सीर बनाने वाले। और इसी तरीके से किसी ने यूँ भी कहा था कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो नज़र नज़र नबुव्वत थी, वो कमली वाले की नबुव्वत का कमाल था, सोबत का असर था। आज हमारे लिए वही दामन है, वही नबुव्वत, रिसालत और पैगम्बरी है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वही कुरान मजीद है। अल्लाह ताला हम सबको भी उन रवायात को अपनाने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए। हमारी